वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में जो ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन आई है। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स इस बार बिना बोले ही उन्होंने ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन कर दी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि किस किस डेट्स की एक्सटेंशन आई है, इसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। वो है न्यू इनकम टैक्स वेबसाइट के बारे में। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स ने एक प्रेस रिलीज निकाला है जहां उन्होंने बताया है कि इनकम टैक्स की जो फाइलिंग की वेबसाइट है, उसका जो साइट है वो चेंज होने वाला है। वो अब हो जाएगा incometax.gov.in और ये 7 जून से चालू होने वाला है। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल integrated with immediate processing of income tax returns to issue quick refunds to taxpayer. All interaction and uploads or pending action will be displayed on a single dashboard for follow-up action by taxpayer. Free to cost ITR preparation software available online and offline with interactive questions to help taxpayer fill ITR even without any tax knowledge, with pre-filling for minimizing data entry effort. New call center for taxpayer assistance for immediate answer to taxpayer queries with FAQs, tutorials, videos, chat box live agent. Or all key portal function on desktop will be available on mobile app, which will be enabled subsequently for full anytime access on mobile network. जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स जो ई फाइलिंग वेबसाइट की जो फैसिलिटी है वो आगे कुछ दिनों में आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा एक नई ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम को इनेबल किया जा रहा है जहाँ की आप अपने टैक्स का पेमेंट नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका कारण यही है कि आपकी जो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो 1 जून से 6 जून के लिए बंद रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वाली जो वेबसाइट है वो 1 तारीख से 6 तारीख तक आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर वहां से कोई डेटा निकालना है तो आप इस पीरियड पे नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको अगर कुछ निकालना है तो आप पहले ही डाउनलोड कर लें वहां से। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ जो सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 25/2021, जिसमें उन्होंने बहुत सारी ड्यू डेट्स की एक्सटेंशन दी है। दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ये इस तरह से लिखा गया है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस in exercise of its power under section 119 of the income tax act provides relaxation in the following respect of the following compliances. सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी for the financial year 2020 and 21 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 114E of the Income Tax Rules 1962, and various notification issued thereunder may be furnished on or before 30th June 2021. The statement of reportable account for the calendar year 2020 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 114G of the rules may be furnished on or before 30th June 2021. The statement of deduction of tax for the last quarter of the financial year 2021 required to be furnished on or before 31st May 2021 under Rule 31A of the rules may be furnished on or before 30th June 2021. The certificate for tax deduction at source in form number 16 required to be furnished to the employee by 15th June 2021 under Rule 31 of the rules may be furnished on or before 15th July 2021. The TDS/TCS book adjustment statement in form number 24G for the month of May required to be furnished on or before 15th June 2021 under Rule 30 and Rule 37 CA of the rules may be furnished on or before 30th June 2021. The statement of deduction of tax for contribution paid by the trustee of the approved superannuation fund for the financial year 2020-21 required to be sent on or before 31st May 2021 under Rule 33 of the rules may be sent on or before 30th June 2021. Point number 7. The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holders in form number 64D for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 15th June under Rule 12 CB of the rules may be furnished on or before 30th June 2021. The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder in form number 64C for the previous year 2020-21 required to be furnished on or before 30th June 2021
under Rule 12 CB of the rules may be furnished on or before 15th July 2021. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 which is 31st July 2021 under subsection 1 of 139 of the Act is extended to 30th September 2021. The due date of furnishing of report of audit under any provision of the Act for the previous year 2020-21 which is 30th September 2021 is extended to 31st October 2021. The due date of furnishing of report from an accountant by any person entering into international transaction or specified domestic transaction under section 92E of the Act for the previous year 2020-21 which is 31st October 2021 is extended to 30th November 2021. The due date for furnishing of return of income for the assessment year 2021-22 which is 31st October 2021 under subsection 1 of section 139 of the Act is extended to 30th November 2021. The due date of furnishing of return of income for the assessment year 2021-22 which is 30th November 2021 under subsection 1 of section 139 of the Act is extended to 31st December 2021. The due date of furnishing of belated revised return of income for the assessment year 2021-22 which is 31st December 2021 under subsection 4 subsection 5 of section 139 of the Act is extended to 31st January 2022. दोस्तों इसके अलावा बोर्ड ने दो क्लैरिफिकेशन भी दी है, जहां उन्होंने सबसे पहला क्लैरिफिकेशन में कहा है इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रेफर्ड टू इन क्लॉज 9, 12 and 13 above shall not apply to explanation 1 to section 234A of the Act in cases where the amount of tax on the total income as reduced by the amount of specified in clause 1 to 6 of subsection 1 of the section exceeds 1 lakh rupees. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख से बेसी है तो आपको 234A का जो सेक्शन है जो कि रिटर्न लेट फाइलिंग के कारण इंटरेस्ट लगता है वो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा. इसके अलावा एक क्लैरिफिकेशन 2 भी आया है जिसमें कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन 1 इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 207 ऑफ द एक्ट. यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ सेक्शन 207 सबसेक्शन 2 में सीनियर सिटीजन्स के बारे में कहा गया है जिसकी की कोई बिजनेस इनकम नहीं है और सिर्फ अदर सोर्सेज इनकम होती है. उनके लिए द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A ऑफ द एक्ट विद इन द ड्यू डेट विदाउट एक्सटेंशन अंडर दिस सर्कुलर प्रोवाइडेड इन द एक्ट shall be deemed to be advance tax. इसका मतलब कि अगर कोई सीनियर सिटीजन जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है वो अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ओरिजिनल ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई 2021 के अंदर अगर पे कर देता है तो उसको एडवांस टैक्स के जैसे ट्रीट किया जाएगा और कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं की जाएगी. तो दोस्तों अगर मैं अपने सारे ड्यू डेट्स को एक शॉर्ट में आपको अगर कंपाइल करके बताऊं तो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि आपने जो कैश डिपॉजिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन जो कि इनकम टैक्स को रिपोर्ट किए जाते हैं, उसकी जो सबमिट करने की डेट है वो 31 मई से अब 30 जून कर दी गई है. उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट और टीडीएस स्टेटमेंट क्वार्टर 4 का लगाने की जिसकी ड्यू डेट 31/5/2021 है उसको 30 जून 2021 कर दिया गया है. इसके अलावा फॉर्म 16 इशू करने का जो टाइम 15 जून है उसको 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है. टीडीएस और टीसीएस का बुक एडजस्टमेंट जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में करती है उसका टाइम भी 15 जून से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है. फॉर्म 64D 64C को सबमिट करने का जो डेट है उसको भी 15/6 से 30/6 और 30/6 से 15/7 कर दिया गया है. अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं तो उसके लिए जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है. अगर आपके केस में ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है और आप अपना रिटर्न ट्रांसफर प्राइसिंग के रिपोर्ट होने के बाद लगाते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट जो 30 नवंबर थी उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया गया है. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अगर आप अपना बिलेटेड रिटर्न या रिटर्न को रिवाइज करना है जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी उसको अब एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया गया है. इसके अलावा अगर हम ड्यू डेट्स को मैं अगर आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो अपनी जो ड्यू डेट है नॉन ऑडिट केसेस में इंडिविजुअल एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो, एओपी बीओआई हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, सबके लिए जो ड्यू डेट है जो कि नॉन ऑडिट वाले केसेस हैं उनके लिए जो ड्यू डेट है वो 31/7/2021 थी जिसको कि अब एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है. अगर हम ऑडिट केसेस की बात करें जहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी बीओआई, चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनीज कोई भी केस हो जिसके केस में ऑडिट होती है
उनके लिए जो ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 थी उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर अपने ऑडिट्स की ड्यू डेट की बात करें तो आपकी टैक्स ऑडिट हो चैरिटेबल ट्रस्ट की, या आपकी कोई भी अदर ऑडिट हो इनकम टैक्स एक्ट में, एक्सेप्टिंग ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर प्राइसिंग, उसकी सबकी ड्यू डेट थी 30 नवंबर 2021। इसको एक्सटेंड करके 31/10/2021 कर दिया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।